السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کراچی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور تحریک انصاف سندھ کی کور کمیٹی کے ارکان کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم دورے کے دوران کورونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی اور صنعت کاروں سے ملاقات کریں گے۔ لاڑکھانہ میں احساس سینٹر کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، ایس او پیز پر سختی سے عمل کرانے کا فیصلہ۔ کورونا کے خلاف برسر پیکار ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے رسک الاؤنس کی منظوری۔ ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کورونا کی روک تھام کے لیے حکمت عملی تیار کی۔ ملک میں ٹیسٹوں کی صلاحیت 30,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 10 جون کے فیصلوں کی توثیق، بچوں کے تحفظ کے بارے میں بل کی منظوری۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی بریفنگ۔ عسکری قیادت کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، علاقائی سیکیورٹی امور، ایل او سی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ۔ وفد میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان شامل۔ مسلح افواج کے سربراہان کا آئی ایس آئی کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی اشتعال انگیزی جاری، ایل او سی کے باکسر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے مہدی کا گاؤں کا بابر حسین زخمی، آئی ایس ٹی آر۔ لداخ وادی گلوان میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین اور بھارتی فوجیوں کے درمیان جھڑپ، برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارتی فوج کے کرنل سمیت 20 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فوج نے سرحد عبور کر کے چینی فوجیوں پر حملہ کیا۔ بھارت کو 1962 کی جنگ میں چین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا۔ بیان حقائق کو مسخ کرنے اور مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے توجہ ہٹانے کی شرمناک کوشش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، ضلع شوپیاں میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید، حریت رہنماؤں کا شہید نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت، ریاستی دہشت گردی میں اضافے پر اظہار تشویش۔ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ملک قرضوں کی دلدل تلے دبا ہوا ہے۔ نون لیگ کے قرضے عمران خان نے واپس کیے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 73% کمی لائے۔ سندھ میں غریب افراد کو راشن کے بجائے بھاشن دیا گیا۔ حکومت نے 3 ماہ میں 111 لیبارٹریز کا اضافہ کیا، 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 روپے دیے۔ وزیر مواصلات مراد سعید کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ملک میں کورونا کیسز کے پھیلاؤ میں تیزی، 24 گھنٹے کے دوران 5,839 افراد میں وائرس کی تصدیق، مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ متاثرین کی تعداد 1,54,760 ہو گئی، مجموعی طور پر 2,975 اموات، 58,437 صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 82,56,000 سے تجاوز کر گئی، ہلاکتوں کی تعداد 4,45,000 سے زیادہ ہو گئی، 43 لاکھ سے زیادہ صحت یاب۔ امریکہ میں 22,07,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,19,000 سے زیادہ جان کی بازی ہار گئے۔ ہلاکتوں کے اعتبار سے برازیل نے برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا، 45,000 سے زیادہ افراد ہلاک۔ کورونا خطرے کے پیش نظر اسلام آباد کے سیکٹر I-8, 3, 4 اور I-10, 1, 2 سیکٹر بشمول مراکز کو رات 12 بجے سے سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فارمیسی، اشیاء خورنوش، ہنگامی اور بنیادی خدمات کے شعبے کھلے رہیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی شہریوں سے راشن اور ادویات کا مناسب انتظام کرنے کی اپیل۔
کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومتی اقدامات. لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ڈیرہ غازی خان اور راولپنڈی کے مختلف علاقے 2 ہفتے کے لیے سیل. کھانے پینے کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے. اور بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 30 جون تک توسیع. تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند. مذہبی، سیاسی اور دیگر اجتماعات سمیت تفریحی مقامات، سینما گھر، کھیلوں کے میدان، شادی ہال اور جمنیزیم پر مکمل پابندی. عوامی مقامات، دفاتر اور دکانوں پر ماسک کا استعمال لازمی قرار. نوٹیفیکیشن جاری. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو. وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. بڑے ہسپتال ہیں اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دباؤ بڑا ہے، اور جو کورونا کے مریض جو ہیں وہ ہسپتالوں کے اندر آ رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑی ہے، اور خاص طور پہ وہ مریض جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. وفاقی حکومت جون کے مہینے کے اندر 1000 آئی سی یو بیڈز جن کے اوپر آکسیجن اویلیبل ہوگی اس کے اضافے کی ذمہ داری لے رہی ہے، اور یہ کام ہم صوبوں کی مشاورت کے ساتھ کریں گے. ہمارا جو صحت کا نظام ہے، ہمارے ہسپتال جو ہیں ان کے اندر جو ہسپتال کا عملہ ہے ان کی جو ضرورت ہے، پی پی ایز وغیرہ تو پرووائڈ کرتے رہے، لیکن اس کے علاوہ جو ضرورتیں ہیں اور ہسپتالوں کی ضرورت، کیونکہ وہ بھی اس وقت باقی جس طریقے سے ملک کے مختلف حصے جو ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں، ہسپتالوں کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو مدد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے پہلے بھی صوبوں کے ساتھ مل کے ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ صحت کے نظام کے اندر صلاحیت بڑھاتے چلے جائیں، مزید انشاءاللہ اس پہ بلکہ اور تیزی سے اب اس پہ کام کیا جائے گا. کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے. یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں. شملہ مرچ. شملہ مرچ میں وٹامن سی کی مقدار ترش پھلوں میں پائی جانے والی مقدار سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بیٹا کیروٹین حاصل کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے. پالک میں وٹامن سی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے. پالک میں موجود فولاد، کیلشیم اور وٹامن اے بھی قوت مدافعت بڑھاتا ہے. اس کا استعمال سینے میں پیدا ہونے والی جلن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے. بروکلی ایک ایسی سبزی ہے جس میں وٹامنز کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے. وٹامن سی کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامن اے اور فائبر کی بھی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے. اسلام کے مطابق صفائی نصف ایمان ہے. آپ نے اپنے اس آدھے ایمان کو مکمل کر کے اس وائرس کو مکمل طور پر شکست دینی ہے. اپنے ہاتھوں کو بار بار کم سے کم 20 سیکنڈ کے لیے دھونا ہے. کوشش کرنا ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں تو اس بیماری سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. مختلف لوگوں سے ملنے، مسافہ کرنے سے یا گلے ملنے سے گریز کریں. اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو چھینکتے وقت کوشش کریں ٹشو کا استعمال کریں. اگر آپ کے پاس ٹشو نہیں ہے تو اپنی کوہنی کا استعمال کریں. ہر عام نزلہ زکام یا کھانسی کورونا وائرس نہیں ہے. کورونا وائرس کے حوالے سے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے متاثر ہونے والے ہر شخص میں ہم اگر بات کریں تو مجموعی طور پر تقریباً 95 سے 96% افراد ایسے ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں.
हर शख्स को इसकी तमाम तर अलामात जाहिर भी नहीं होती। तो आइए इन सब एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निपटने के लिए एक दूसरे का साथ दें। कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अपने हाथ साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोइए। अपने हाथ बाकायदगी से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या महलूल से साफ कीजिए। किसी भी छींकने या खांसने वाले शख्स से कम 1 मीटर का फासला रखिए। अपने मुंह और नाक को छींकते या खांसते वक्त झांपने के लिए अपना बाजू या टिश्यू इस्तेमाल कीजिए। बाद में टिश्यू को फौरन जाया कर दीजिए। अगर तबीयत खराब हो तो घर तक महदूद रहिए। बुखार, खुश्क खांसी या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मकामी सेहत की अथॉरिटी की हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। सनती मालिकान मुतवज्जे हों। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें। थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं। मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए ज़राए आमद-ओ-रफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। अपनी जान और जिंद है यारों, ये मनमोहना सिंध है यारों। पूरे पाकिस्तान के बाबा कायद बाबा इस बस्ती में ही सोते हैं। हंसते बसते रोशनियों के शहर के साए दूर बहीरा अरब के साहिल पर दिखते हैं। सिंध सूफियों की धरती है। इस धरती की बुनियादों में इश्क रचा है। रीतों और रिवाजों का गहरा सागर है और कदीमी तहजीबों का एक मरकज है। सिंधु साईं दरिया कम है, इश्क ज्यादा। मस्त मछेरों की इकलौती जान यही है। प्यारे माही गिरों की पहचान यही है। नीला गहरा इश्क समंदर, हर दिल बोले मस्त कलंदर। शाम से पहले 4 चराग यहीं चलते हैं। सहवन के दरवेश हमेशा रक्स के आलम में मिलते हैं। प्यार और अमन की राह दिखाने एक सचल सरमस्त भी आए और भिटाई ने भी एक कंदील जलाई, जिसकी लौ से आज भी पाएं लोग दुआएं। जिनके तंबूरे के सुर हैं लहू की सूरत बदन में रोशन। मंचर झील की नीली दुनिया, जिसमें बेड़ियां और मुहाने दिल दरिया से गहरे पानी में बसते हैं। रानी कोट की मीलों लंबी ये दीवारें, जिनकी बाहों में महफूज हैं सदियों के मीठे अफसाने। पास ही कुछ अलबेली सखियां खेत से फूल कपास के चुनकर
एक लिबास का टुकड़ा बुनकर रंग बिरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाएं। थर का सहरा गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके, रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है। इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है, और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के संगार अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी वजहें जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। कुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले फल चकोतरा, माल्टा, लीमू। पपीते में विटामिन सी का जखीरा होता है। दिन भर में दरकार विटामिन सी की मिकदार का 224% एक पपीते से हासिल हो सकता है। कीवी में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि पोटेशियम की भी वाफिर मिकदार मौजूद होती है। और उसके बाद हमें दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। कोरोना वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? इस बीमारी के तकरीबन 97% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वबा के पेश नजर तामीराती इंडस्ट्री के लिए चंद एहतियाती तदाबीर। बायोमेट्रिक हाजिरी से गुरेज करें। तामीरात वाली जगह पर दाखिली और खारजी रास्तों पर थर्मल गन की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। तमाम कारकुन ड्यूटी शुरू होने के वक्त काम वाले कपड़े पहने और काम खत्म होने पर नहाने के बाद मामूल के कपड़े पहन लें। कारकुनों और सारिफीन के दरमियान राब्ते वर्चुअल मवासलात के जरिए रखे जाएं। मौशरती फासलों के लिए 2 मीटर की दूरी इख्तियार करें। मुतबादिल या इजाफी शिफ्टों के जरिए मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाए। मजदूर हजरात काम से पहले और बाद में हाथ धोना हरगिज न भूलें। बीमार मजदूरों को किसी सूरत काम पर न बुलाया जाए। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामत जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। मुलाजमीन को अच्छे मयार के मास्क और नकल व हमल के जराए फराहम करें। ड्राइवर्स दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशन न चलाएं और खिड़कियां खुली रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। अब हमें मालूम करना है कि किस सब्जेक्ट की किताबें सबसे कम। मुल्क
के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। मंजिल
आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ओपल कैपिटान इसमें शार्क के मुंह जैसी धात की जाली है, एक पेशे निगाह विंड स्क्रीन, बहुत सी जगह और 6 सिलेंडर्स रखने वाले आज भी इसकी दिल से तारीफ करते हैं और इसे ढूंढते फिरते हैं। उन्नीस 1950 और 60 की दहाई के उरूज में कैपिटान ने जर्मन मुआशी मोज़े को एक मुजस्सम हकीकत का रूप दिया। ये एक ऐसी कार थी जिसने कहा था मैंने इसे बनाया है। आला दर्जे का मॉडल, ऐशो आराम का मंजर।
1938 से लेकर 1970 तक के ओपल कैपिटान के तमाम मॉडल्स जहां जमा किए गए हैं। शुमाल मगरबी जर्मनी में कायम ये फॉर्म जोसेफ और मार्टिन डेगनर की मालकियत है, जो ओपल के परिस्तारों के लिए किसी तौर एक खजाने से कम नहीं है। दोनों भाई अपने वालिद की तरह एक कार डीलरशिप चलाते हैं, जैसे इनसे बेशतर इनके वालिद करते थे। वो ओपल बिलखसूस कैपिटान इकट्ठी करते हैं। लड़कपन में उन्होंने कैपिटान के पहियों पर बैठने का मजा लिया है, जब इनके पांव के नीचे लकड़ी के ब्लॉक्स रखे होते थे। अब इसमें हैरत अंगेज अंदाज में बिल्कुल नए तरीके से गिलाफ चढ़ाए गए हैं। दोनों भाइयों की तवज्जो एक ऐसी कार ने हासिल की है जो एक वक्त में ऑटोमोटिव दुनिया की भरपूर तरीन तवज्जो का मरकज रही है। जोसेफ डेगनार ने बताया कि ओपल कैपिटान को मगरबी जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्री में एक शाहकार की हैसियत हासिल थी और शहरियों के लिए ये किसी स्टेटस से कम नहीं थी। ये हमारे लड़कपन और अवाइले जवानी के दौर में किसी ख्वाब से कम नहीं थी। एक ऐसी कार जो हमारे वालिद बमुश्किल ही अफोर्ड कर सकते थे, या सिर्फ आर्जी तौर पर महज एक नुमाइशी दिखावे के लिए। ये 1950 और 60 की दिहाई में एक तखयलाती और इंतहाई पुरताइश कार शुमार होती थी। 33 सालों पर मुहित कैपिटान के तमाम 8 मॉडल्स नए और पुराने यहाँ मौजूद हैं। दूसरी जानब कैपिटान की खुसूसियात ने उसे एक बेशकीमत तस्वुर दे दिया, और यही वो तस्वुर और बरतरी थी जिसका तस्वुर खरीदारों को मतलूब था। बाएं जानिब 1938 से 1954 की मॉडल की कैपिटान है, जो बड़े क्रोम और लंबी चूड़ियों वाले बड़े अमरीकी क्रूजर से मुमासलत रखती हैं। 1954 में कैपिटान को एक मुकम्मल कवर पर मुश्तमिल बॉडी दी गई थी, जिसमें गाड़ी के फेंडर्स और हेडलाइट्स को यकजा किया गया। इस तरह से ओपल ने अपने सबसे मशहूर मॉडल P26 तैयार किया, जिसमें P से मतलब पैनोरामिक विंडशील्ड है। पैनोरामिक विंडशील्ड की मदद से एक वसी पेश मंजर को देखा जा सकता है। ये रुझान दुनिया भर में अमेरिका से फैला। इस मॉडल को बादशाह की होल कैपिटान की उर्फियत भी हासिल हुई, क्योंकि इसकी पिछली लाइट्स पुराने जमाने की होल्स लाइट्स फैशन से मुमासलत रखती थी। इस वक्त ये कतई बड़ी कामयाबी नहीं थी, क्योंकि उसकी अक़बे नशिस्त बहुत तंग थी। उस वक्त की इंडस्ट्री के बड़े कप्तान अपने सर पर रखी टोपियों के साथ इसमें नहीं बैठ सकते थे। लिहाजा सिर्फ 9 महीने की मुद्दत में ओपल ने एक नया मॉडल तैयार किया। ये कैपिटान का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला मॉडल है। ये 1959 से लेकर 1963 तक तैयार किया गया। इन वर्षों में तकरीबन हर एक ज्यादा नई तादाद में कैपिटान रजिस्टर्ड की गई, बनिस्बत दीगर 6 सिलेंडर्स की हामिल तमाम जर्मन गाड़ियों के मुकाबले में। 1950 की दिहाई में जब जर्मनी के बेशतर लोग पैदल थे और औसत काम करने वाली कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वजीर इक्तसादियात लुडविग एरिक के मातहत मगरबी जर्मनी की मईशत उरूज पर पहुंची थी। लोग अपनी बढ़ती खुशहाली को एक बड़ी कार के साथ देखना पसंद करते थे। इस तनाजुर में ओपल कैपिटान एक दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त मकाम पर एक बेहतरीन कार थी। आज के जमा करने वाले हर तरह से कैपिटान से वाबस्ता हैं। इनमें जुनूब मगरबी जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले मार्क्स लीनियर भी हैं। इनकी अपनी कैपिटान इस वक्त रंगो रोगन की दुकान में मौजूद है। मार्क्स इस वक्त अपनी कैपिटान को तैयार करवा रहा है। ये वो गाड़ी है जिसमें वो अपनी अहलिया के साथ शादी के दिन घूमे फिरे थे। अगर आप ओपल कैपिटान चलाते हैं तो जरूर आप में कुछ खास मौजूद है, लेकिन ये सब बेकर्स, कसाब और इमारतों के ठेकेदार थे। 6 सिलेंडर्स की मौजूदगी ने इस कार को इस रेंज की तमाम गाड़ियों से मुमताज कर दिया था। सेडान की साबका खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अभी भी कुछ बेहतर करना बाकी है, लेकिन मार्क्स लीनियर इस हवाले से बहुत पुरुमीद हैं। बेशतर लोग गाड़ी की जानिब देखे बगैर ही चले जा रहे हैं। नई गाड़ियों के हवाले से मेरा रुझान भी कुछ ऐसा ही है। मैं हमेशा से पुरानी और नायाब गाड़ियों देखकर खुश होता हूँ। ये ऐसा ही है जैसे भीड़ में कोई शनासा चेहरा नजर आ जाए। वो चाहते हैं कि वो अपनी कैपिटान को एक धाती बोई नीले रंग में पेंट करवाएं। इस हवाले से मार्क्स लीनियर को स्विट्जरलैंड से असल स्प्रे आउट कार्ड्स और तराकीब हासिल करना पड़ी।
आपको यह एहसास करना होगा कि जर्मनी में दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद किसी को भी धाती रंग के साथ कार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं हुई। ये बहुत ही महंगी थी और बेशतर मौकों पर लोगों को हसद में मुब्तला कर देती थी। मार्क्स को उम्मीद है कि वो अपनी वेडिंग कोच को कुछ हफ्तों तक जल्द धाती बोई नीले रंग के साथ चुनेंगे। ओपल कैपिटॉन के तमाम तर वर्जन रॉसलशेम में ओपल के मगरबी जर्मनी के सदर दफातर में डिजाइन किए गए थे। जॉर्ज गैलन ओपल के साबिक डिजाइनर हैं। आबाई कंपनी जनरल मोटर्स ने इन्हें मुत्तहिदा अमेरिका से रॉसलशेम भिजवाया और बाद अज़ां वो मगरबी जर्मनी में मुकीम हो गए। जॉर्ज गैलन ने इस 1956 साख्ता उम्दा कैपिटॉन में सफर से लुत्फ उठाया। सालों तक ये कारें इसी हॉल में तैयार की गयी। ये बहुत ही सहल अंदाज में खामोशी से चलती है। आप सिर्फ एक उंगली की मदद से बड़े स्टीयरिंग व्हील को घुमा सकते हैं। ये सुनहरी कैपिटॉन अपनी इकसाम के हवाले से बहुत मुनफरिद है, जो ओपल की जुबली कार है। इसमें कार बनाने वाली कंपनी ने इस बात को यकीनी बनाया कि इसकी पेश करदा जुबली कार उस वक्त की कारों के हवाले से बेहतरीन मॉडल हो, और ये उस वक्त के ओपल के मॉडल्स में सबसे बेहतरीन था। इसने नवंबर 1956 में असेंबली लाइन को अंदर ही अंदर फैला दिया। In the 1950s, the K40 Hall 1950 में K40 हॉल को दुनिया भर में जदीद तरीन ऑटोमोबाइल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बेहतरीन सहूलतगाह समझा जाता था। आज ये बिल्कुल खाली पड़ा है। मुझे याद है यहाँ पर तैयार और निस्फ तैयार शुदा गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद होती थी। इस जगह पर गाड़ियों में सीटें लगाई जाती थी और अगले मरहले में गाड़ियों के व्हील लगाए जाते थे। 1950 की दिहाई के इख्तिताम तक ओपल यूनिट में 32,000 अफराद पैदावारी अवामिल में काम करते थे। जनरल मोटर्स के एक जर्मन झेली इदारे की हैसियत से ओपल ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की और ज्यादातर क्रेडिट कैपिटॉन को जाता है। इस हवाले से ये इस ब्रांड का सुनहरा दौर था। ओपल इकट्ठी करने के शौकीन मार्टिन और जोसेफ डैगनर फिल वक्त एक बहुत ही खास कैपिटॉन मॉडल की तलाश में सरगर्दा हैं, जो जरूरी नहीं कि सुनहरे रंग की हो। इस खानदान की मलकियत में यूरोप भर के मुकाबले में ओपल के मजमूई मॉडल्स की एक बड़ी कलेक्शन निजी हैसियत में मौजूद है। ये एक महंगा मशगला है, क्योंकि कैपिटॉन एक बेहतर मॉडल होने के बावजूद दीगर विंटेज गाड़ियों की कीमत के मुकाबले में महंगा है। इसके बावजूद इन मॉडल्स की मालियत कई लाखों में है, लेकिन इन दोनों भाइयों के नजदीक इनके एहसासात की कीमत बेहिसाब है। 1954 के इस कैपिटॉन मॉडल की एक बाकायदा शाहाना तारीख है। सहरा की रेत की वजह से इसकी सतह का रंग कदरे फीका हो गया है। इस कार के कागजात से जाहिर होता है कि असल में इसे मराकश के शाही खानदान के तसर्रुफ में रखा गया था। ये अम्र बहुत खूबसूरत है कि इसकी कुछ खामियों को बेहतरीन अंदाज में दुरुस्त कर दिया गया है। आप इसे शमाली यूरोप में नहीं चला सकते। ये मॉडल खुसूसी तौर पर शमाली अफ्रीका के लिए तैयार किया गया था और इसमें इसी वजह से हीटर नहीं है। मेरे ख्याल में मराकश के बादशाह रियासती मौक़ों के लिए रोल्स रॉयस इस्तेमाल करते रहे होंगे और रोजमर्रा ड्राइविंग के लिए ये उस वक्त शाही लेमोजीन का दर्जा रखती होगी। आप यकीनी तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मराकशी बादशाह और दीगर अरब हुक्मरानों की तरह से दौलतमंद नहीं था। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि वो एक ओपल कैपिटॉन से मुतमईन थे और हकीकत में उसे ही ड्राइव करते थे। बहुत पहले मैकेनिक्स ने एक और कैपिटॉन P26 पर मुरम्मत के काम को खत्म किया है। मार्क्स लीनियर की वेडिंग कोच भी एक P26 है। इस पर पेंट का काम तकरीबन खत्म हो चुका है और ये अपने घर के गैराज में वापस आ चुकी है।
लीनियर के बेटे फ्लोरीन ने अकबी नशिस्त पर रखने के लिए मदद फराहम की। इन्हें एक मुकम्मल मुलाजमत करने की जरूरत नहीं है, बस इस अमर को यकीनी बनाना है कि ये राहत बख्श और सड़क के काबिल रहे। एलके लीनियर अपने साथ उठाकर एक पुराना फोटो एल्बम लाए हैं। क्या आप रंग का मवाजना करने के लिए ये देखना चाहेंगे कि आया ये वाकई हमारी कार की तरह लगता है? हमारी डार्लिंग, ये लीनियर की वेडिंग कोच है जब उन्होंने 2002 में शादी की। और तभी से ये कैपिटान इनकी फैमिली का हिस्सा है। डेगनर भाइयों ने कैपिटान 51 को लिया और बाहर घूमने निकल पड़े। इन्हें ये मॉडल बहुत पसंद है क्योंकि इस मॉडल को एक गैंगस्टर कार के हवाले से बहुत मकबूलियत हासिल रही है। ये कार 1950 की दिहाई के गैंगस्टर्स का पसंदीदा इंतखाब थी जो इसे डकैती करने के बाद वहाँ से फरार होने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से जानते थे कि इस काम के लिए कैपिटान एक बेहतरीन इंतखाब है। जंग के बाद के इब्तदाई सालों में पुलिस इतने मुनज़्ज़म अंदाज में सहूलियात से लैस नहीं होते थे जैसे वो अब हैं। उन्होंने 18 हॉर्स पावर की हामिल फौजी गाड़ियां चलाई थी, जबकि इस कॉपिटेन की ताकत 58 हॉर्स पावर के बराबर थी। ये कारकर्दगी के लिहाज से भी हद दर्जा अफजल थी। इस गाड़ी की ताकत और इस्तात की वजह से पुलिस इस गाड़ी को चलाने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ बेबस रहती थी और उन्होंने कभी कोई मौका फराहम नहीं किया। गैंगस्टर कैपिटान का डिजाइन अमरीकी मॉडल से बहुत मुशाबहत रखता था और इसकी मकबूलियत का ये एक अहम जुज़ है। रासल शेम में उपल हाउस के सामने रिटायर्ड डिजाइनर जॉर्ज गैलन एक कतार में खड़ी कैपिटान का मुआयना कर रहे हैं। 1950 की दिहाई में मगरबी जर्मनी के लोग हर उस चीज के दीवाने थे जो अमेरिका से आई हो। यूं उपल ने शेवरले, ब्यूक और कैडिलैक के मॉडल से आइडियाज लिए और इस हवाले से P25 के लिए डिजाइन का तस्वर किसी इस्तिस्ना से खाली नहीं था। यहाँ ये डिजाइन 1958 के बड़े शेवरलेट डिजाइन से किस कदर मुमासलत रखता है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं कि कैसे विंड स्क्रीन और अकबी विंडो कैसे एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं। ये 2 दरवाजों का विजन है, लेकिन 4 दरवाजे भी इससे जरा मुख्तलिफ नहीं थे और ये वो जिसे वो कुत्ते की टांग कहते थे। आपको अंदर जाने के लिए इस कोने के नीचे से चढ़ना होता था। कुत्ते की टांग के सबब आप बामुश्किल कार में दाखिल हो पाते और मुतल्लिका शख्स को अंदर ले जाने के लिए एक टेक्निक अपनाना पड़ती थी। इस हवाले से इन्होंने लोगों को सिखाया कि पहले बैठें और फिर अपनी टांगे अंदर खींचें। इसमें किसी तौर कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉर्ज गैलन ने कैपिटान के मुख्तलिफ मॉडल्स की खसूसियात को दीगर मॉडल से मुमताज करने के हवाले से खसूसियात की निशानदही की। 1954 में उन्होंने वो खसूसियात हासिल की जिससे बादशाह शार्क के मुंह की जाली से मुशाबहत दी गई। ग्रिल खोलने के हवाले से ये खुला मुंह ओपल की खुसूसियात से मुशाबह था। शार्क का मुंह सबसे पहले अमेरिका में 1953 में शेवरलेट क्रोवेट पर आवेजा किया गया था। यूं ओपल ने इसे कमोपेश इस सूरत में अपने बड़े मॉडल्स के लिए मुंतखब किया। इस ज़िमन में कैपिटन इस जाली नुमा डिजाइन के हवाले से सबसे मखसूस विजन का मॉडल था। मार्क लीनियर का P26 आखिरकार इसे लेने के लिए तैयार है। इसे अभी रोड के काबिल बनाने के लिए मजीद कुछ कोशिश और वक्त दरकार है। यूं नए बहाली तजुर्बाकार के साथ इनका ये पहला सफर है। इसे 1962 में बनाया गया था और यूं इसके और इसके ड्राइवर की उम्र यकसां बनती है।
मार्क क्लीनर अपने लड़कपन में ही ओपल कैपिटान के इश्क में गिरफ्तार हो गया था और फिर वो कभी इस प्यार के हसार से बाहर निकल ही नहीं पाया। लेकिन ये 100 किलोमीटर में 11.7 लीटर गैस इस्तेमाल कर लेता है। ये एक स्टीयरिंग अमूदी इस्तादा गियर तब्दीली के साथ 90 हॉर्स पावर को 3 रफ्तारों में बंद कर देता है। इस हवाले से फैसला कुन अंतर सिलेंडर्स की तादाद है। 6 सिलेंडर से इस्तेमाल कार बनिस्बत एक 4 सिलेंडर वाली कार के ज्यादा आसानी और सहूलत के साथ चलाई जा सकती है। आप तीसरे गियर के साथ ही तेज तरीन रफ्तार हासिल कर सकते हैं और फिर 165 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकते हैं, और मैंने ऐसा कई बार किया है। मार्क क्लीनर के पास अपनी नई मुरम्मत शुदा कैपिटान में सफर करने का एक खास मकसद है। वो अपने पसंदीदा अंगूरों के बाग से अपनी पसंदीदा वाइन लेने जा रहे हैं। ये राइन की मुखालिफ सिमत में वाक़या है। कैपिटान पर क्रॉसिंग के लिए कार फेरी का बोर्ड नस्ब कर दिया जाता है। मार्क्स जब कैपिटान की तवील तारीख पर नजर डालते हैं तो अपनी पुरानी यादों का मंजर इनके सामने छा जाता है। लड़कपन में हमारे पड़ोस में एक कैपिटन और बाद में ओपल एडमिरल या ओपल डिप्लोमेट बहुत अहमियत की हामिल थी। कोई ऐसी गाड़ी चलाने से आप ज्यादा पुरतखय्यल और तसव्वुराती नहीं बन जाते, लेकिन आजकल आप कहेंगे कि कैपिटन को चलाने को बहुत कम समझा जाता है। इसका अपना एक उरूज था, लेकिन 1964 के बाद से कैपिटान के लिए एक तवील और कदरे सुस्त ग्राउंड के दौर का आगाज हो गया। बाद अज़ां नया पेश किया गया मॉडल ओपल कैपिटान ए, जो अपनी बनावट और डिजाइन के हवाले से कदरे बॉक्सी था, काबिले फख्र कैपिटान जो कभी एक उरूज का हामिल था, आज महज एक टीम का हिस्सा बन चुका है। और शायद ये ही वक्त का मामला है। 1970 के अवाइल और ओपल की जानिब से कैपिटान की प्रोडक्शन रोक दी गई, क्योंकि जर्मन लोग अब बड़ी अमरीकी कश्तीनुमा गाड़ियों से ज्यादा मुतासर नहीं होते थे, बिलखसूस ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों से। एग्जीक्यूटिव क्लास में एक कार की दिखावट बहुत अहमियत रखती है, और इस ज़मीन में यहाँ कुछ पॉइंट्स कम रहे हैं, और यही वो हतमी मराहल होते हैं। कैपिटान चूंकि अपनी कीमत में काबिल बर्दाश्त थी, और इसी वजह से उसे दीगर टॉप रेंज गाड़ियों के मुकाबले में कुछ सस्ते अवामिर के साथ बनाया गया, और शायद ये अवामिल ज्यादा साजगार साबित नहीं हुए। 33 साल के इस तवील अरसे में इसने इंतहाई खूबसूरत 8 पोशाकें पहनी। सबसे पहले एक लंबे और सतवा नाक के साथ 1930 के अख्ताम पर फिर एक रेशमी तैरती कश्ती के से जिस्म की तरह से चाको चौबंद और बड़े इंजन के साथ, फिर बाद अज़ां खरीदारों की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक कैपिटान एक शार्क के मुंह जैसी जाली की तरह से आई, और कैपिटान को मौजूदा सूरत हासिल हुई। फ्रंट में वसी पेशे मंजर विंडशील्ड के साथ और अकब में भी एक वसी पेशे मंजर के साथ अब उसने हकीकतन एक नया सलीका हासिल कर लिया। P26 पहली लेन में वारिद हुई। वो फरोख्त के रिकॉर्ड्स के हवाले से बेहतरीन कैपिटान साबित हुई। उसे ताज पहनाने के लिए मैं खुद बहुत बेकरार हूँ। 6 सिलेंडर्स के साथ एक कैपिटान बादशाह की तरह से, लेकिन बाद अज़ां जल्द ही बड़ी 3 आई। कैपिटान गोया के जैसे किसी समंदर में हो। एडमिरल और डिप्लोमेट के साथ कैपिटान ने अपना हेड अपने सर पर सजाया। ये मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर।
पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी फेज में से गुजर रहा है कि जिसमें अगर हमने SOPs के ऊपर सख्ती से अमल न किया तो हमारे केसेस और अमवात में बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा और नामालूम कब तक होता रहेगा। इसलिए हुकूमत की इस वक्त जो हिकमत अमली है वो ये है कि हम SOPs जो हैं उनका इतलाफ यकीनी बनाएं। जो लोग इसके ऊपर अमल ना करें उनको इसका अकाउंटेबल करें। मास्क पहनना हमने ऑलरेडी लाजमी करार दे दिया हुआ है। दूसरा जो हमारा है जी वो है कि TTQ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन, जिसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम एक जनरल किस्म का लॉकडाउन लगा दें, हम उन जगहों को लॉकडाउन करें कि जहाँ पे ज़्यादा केसेस है। तो ये दोनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है इसी में हमारी आफियत है और तमाम पाकिस्तानियों को इसके उस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़िज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। शिमला मिर्च में विटामिन C की मिकदार तुर्श फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन C की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन A भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन का जखीरा मौजूद होता है। विटामिन C के साथ साथ इसमें विटामिन A और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज़ पर। रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलोचिस्तान की बातें, बोजी और बोलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। ये है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदोखाल मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले ये मत वाले अपनी रीत रवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़बानों को पहचान बनाने वाले इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती ज़रखेज़ है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। और माड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें कायद चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में
आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई जमाने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर के राही बेखौफ मछेरे, जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं सुबह सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खित्ते के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलोचिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। सनती मालिकान मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें, थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए जराया मुदरस में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। किसी की छींक या खांसी की सूरत में ये मुंतकिली माया ज़रात की सूरत में हो सकती है। ये वायरस के मरीज की छुई हुई जगह या सतह को छूने और हाथ को मुंह, नाक या आंखों को लगाने से सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकता है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। शौक तेरा गर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब।